الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ معزز سامعین کرام، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آسمان و زمینوں کو، دریا و پہاڑ کو، باغات کو، پھلوں پھولوں کا پیدا کرنے والا یہ محض اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، بغیر شرکت غیر۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ پاک ہے۔ جو بھی عالم میں نفع یا نقصان کا ظہور ہے وہ آپ کی صفات کا ظہور ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین آسمان کے پیدائش میں غور کرتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، یہ جو زمین آسمان اور کائنات تو نے بنایا ہے بلا مقصد کا نہیں ہے، بلکہ باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سبحانک فقنا، آپ کی ذات تو پاک ہے، ہمیں عذاب سے بچا لی۔ تو اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو، رہے یاد میں ان کی مشغول ہر دم، سوا اس کے جو کچھ ہے سب درد سر ہے۔ معزز سامعین کرام، بتایا گیا ہے کہ تم اپنے دل کو فارغ کر لو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اگر تم نے اپنے دل کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا تو پھر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ مشغولیت ڈال دیں گے اور فرصت نہیں ملے گی۔ تو فرصت اسے نہیں ملتی ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کے یاد کے لیے، عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا۔ عبادت طرح طرح کے ہیں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، تلاوت کلام سے، اور قرآن کی نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن کلام پاک کا کرنا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا ذکر کرنا وہ بھی تمام چیزوں سے بڑی چیز ہے۔ تو جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، سکون بخشتا ہے اور طرح طرح کے ٹینشنوں سے نجات دلاتا ہے۔ ہر حال میں ذکر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یہ طریقے اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا۔ زبان سے ذکر ہے تو بھی اس کے جو قرآن حدیث میں بتایا اس کے حساب سے ذکر کرنا ہے، اور پھر سانس سے آسن فاس کرنا، ذکر قلبی کرنا، یہ سب بھی قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے۔ بتایا کہ جب مسلمان ایمان والا جب قرآن سنتا ہے تو تفیض من الدم، اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو جاری ہونا ایمان میں زیادتی محسوس کرنا، اور اسی طریقے سے تقشعر قلوبہم وجلودہم، کہ وہ اللہ کا یاد اور اس کے عذاب اور ان کی قدرت کو دیکھنے کے بعد میں دل میں ایک ہیبت طاری ہوتی ہے اللہ کی قدرت کی، اس کی بڑائی کی، اور اس کے بعد بدن ہاتھ میں لرزہ طاری ہوتا ہے، یا اس کے اثرات پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ تو قرآن میں بتایا ہے، اسی کلام پاک میں وہ بھی بتایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو میں نے آج ذکر میں لگا رکھا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحوں کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ قرآن نے ایک جگہ اور بتایا کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ،
दुनिया की जितनी चीजें हैं हर चीज ने अपनी नमाज कैसे पढ़नी है और तस्बीह क्या पढ़ना है सबको मालूम है। नमाज में और तस्बीह में लगा हुआ है। क़याम होना ये फर्ज है, किसी को क़याम में रखा। कोई फरिश्ते आसमान के ऊपर कितने हैं जो क़याम की हालत में है, कोई रुकू की हालत में है, कोई सजदे की हालत में है। तो गरज की नमाज की जो हैत है क़याम क़ुऊदम खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना, कादा करना, इन तमाम हालतों में फरिश्ते मौजूद हैं और अल्लाह के जिक्र में लगे भी। इसी तरीके से जो है दुआ के अंदर जहन्नम दुआ के अंदर बैठाया गया है। वो कहते हैं कि सर्कस जितने लोग हैं उनको मेरे तक भेजो, मैं उसको उसके किए का सजा दूंगा। और जन्नत नेकोकारों के लिए दुआ करने में लगाया है कि जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, ईमान वाले हैं और फिर वो तेरी याद में मशगूल है, तेरे इबादत में लगा हुआ है, खिदमत खल्क में लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को तकलीफ झेल कर जब मेरे पास आएंगे, मेरे पास भेजिए, हम उसको तरह तरह से आराम देंगे। तो ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, खुद दुनिया भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। और यह दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी और आखिरत की ज़िंदगी वही असल में ज़िंदगी है। इसलिए इंसान को दुनिया के अंदर तकलीफ हो तो उसमें सब्र करना चाहिए। आइंदा अगर किसी तरह का तकलीफ आने का डर हो तो अल्लाह के पनाह में रहो, जिसे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में बताया गया है कि तुम अल्लाह के पनाह में आ जाओ और सारे मखलूक से तुम पनाह चाहो, हम तुझे पनाह देंगे। चाहे वो वसवासुल खन्नास हो और उससे भी हम तुम्हें अपनी पनाह में रखेंगे, उनके सर से हिफाजत करेंगे। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, और अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो दूनी अस्तजीब लकुम, मांगो मैं दूंगा, तकलीफों को दूर करूंगा। ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ ही वो चीज़ है जो तकदीर को भी, जो मुअल्लक़ है, उसको भी बदल सकती है। इसलिए सबसे पहले कुरान से पहले दुआ सिखाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की मुझे हिदायत मिल जाए और इबादत तेरी ही करें और तुझी से सिर्फ मदद चाहें, और उन्हीं रास्ता तो उनका हो जिन पर इनाम हुआ है। इनाम पाने वाले जो लोग हैं वो शोहदा, सालिहीन और मिनन नबीन, नबियों का और सिद्दीकीन का, ये चार जमात अल्लाह से इनाम पाने वालों की जमात है। काफ़ी इनाम पाने वालों की जमात में शामिल होने के लिए उनके अमाल को अपनाना पड़ेगा। तो ये दुनिया जिसके अंदर हम आराम कर पाना चाहते हैं, अल्लाह पाक ने आराम और तकलीफ को मिला दिया है। खालिस आराम इस दुनिया में नहीं है और खालिस तकलीफ भी नहीं है। जहन्नम है, वहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, हर चीज़ की तकलीफ है। आग में डाल दिया जाएगा और फिर उसको जो है समझिए तरह तरह के अजाब में रहेगा और उसके किसी के पहलुओं को, पेशानियों को दागा जाएगा और जो है समझिए कि रंग बिरंग का उसमें खाने के लाइन से, पीने के लाइन से, हर लाइन से तकलीफ जो इस दुनिया में इंसान सोच नहीं सकता है, वो तकलीफ जहन्नम में होगा। तो उससे बचने के लिए और वैसे अमाल से, बुरे अमाल से बचना चाहिए। बताया कि जो आदमी अल्लाह के जिक्र से एराज करता है, हम नहीं करेंगे जिक्र, क्या होता है जिक्र करने से, तो कहते हैं नुक़य्यिज़ लहू शैतानन क़रीना। जो आदमी जिक्र से एराज करता है, परहेज करता है, नहीं करना चाहता है, तो मैं उसके ऊपर हमजाद मुसल्लत कर देता हूँ, करीन मुसल्लत कर देता हूँ। फसा करीना, वो बदतरीन साथी होता है। तो कुरान में लिखा है कि कैसे लोगों पर हमजाद शैतान मुसल्लत किया जाता है। एक तो हमजाद वो है जो इंसान पैदा हुआ और वो उसके साथ ही शैतान पैदा हुआ, वो जो है समझिए कि
पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है भगाने के लिए, तकलीफों में डालने के लिए। और एक शैतान वो है जो बाहर से उसकी मदद करता है। गरज के साथ में शुरू से रहने वाला शैतान भी बनाया गया है। मोह के माल से शैतान अपना मजलिस जमा कर किसके पास किसको जाना और कैसे उसको राह रास्त हटाना है अल्लाह से चालन करके इंग्लिश में बोल दिया है कि हम तेरे सीधे रास्ते पर बैठ के रहूँगा और तेरे बंदों को मैं बहकाता रहूँगा। भला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन, उनमें से अक्सरियत को आप शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से शैतान और नफ्स ये दो दुश्मन है हमारा। तो नफ्स को तो कंट्रोल करना है। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु, होशियार आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा। क़यामत में ऐलान होगा कि कौन लोग अक्लमंद लोग कहाँ हैं। तो अक्लमंद लोगों से पूछेंगे क्या मुराद है अक्लमंद लोगों से। हम तो अक्लमंद समझ रहे हैं कि जो जहाज बना रहा है, ट्रेन बना रहा है, बस बना रहा है, तरह तरह के इजादात कर रहे हैं, ये लोग अक्लमंद हैं। इंजीनियर और हार्ड इंजीनियर और सॉफ्ट इंजीनियर बने हुए ये लोग अक्लमंद हैं। ये लोग अल्लाह की नज़र में अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो है जो माँ सेवा को छोड़ करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता हो। ये फ़ायदा ही फ़ायदा हर आन वो उठाने वाला है। इसीलिए जिक्र के अंदर भी लज्जत है, हलावत है। और थोड़ा सा अमल हो और उसको बराबर किया जाए। खैरुल अमल मा कल्ला व दीमा अलैह, अमल थोड़ा हो और बराबर हो सबसे बेहतरीन अमल है। इसीलिए जो ईमान के बाद में अल्लाह पाक से इंसान को आफियत मांगनी चाहिए और नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए। शैतान की शर से हिफाजत के लिए पनाह में आना चाहिए और जो भी ज़रूरियात हो अल्लाह से मांगना चाहिए। तो अल्लाह ने तो इतनी नेमतें दी हैं कि असबगा नेमहु ज़ाहिरन व बातिना, ज़ाहिरी नेमतें भी में डुबा दिया है और बातिनी नेमतों को से भी नवाजा है कि उन नेमतों को कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, हर चीज़ के तरीके होते हैं, उसी तरह से जिक्र करने के भी तरीके हुआ करते हैं। खानकाहों पर बैठकर अल्लाह वाले उन तरीक़ों को जो उनको सीखना चाहता है, जो उनको करना चाहता है, उसको तरीक़ा सरल अंदाज में बताते हैं ताकि वो अल्लाह वाला बन जाए और जो अल्लाह से लगाव हो जाए, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। अल्लाह से राज़ी होने के तरीके, अल्लाह को खुश करने के तरीके, अल्लाह से मदद लेने के तरीके, अल्लाह को याद करने के तरीके, ये वो चीज़ें हैं जो खानकाहों में बताया जाता है ताकि दिल में चैन सुकून हो। और उसकी बरकत से जब तक़वा इख्तियार करता है, तक़वे के तरीके को इख्तियार करता है तो अल्लाह पाक उसके ज़हनों को खोलते हैं। बताया कि तुम अगर बड़ा आलिम बनना चाहते हो तो तक़वा इख्तियार करो, तुम बड़ा आलिम बन जाओगे। और अगर कुरान समझना चाहते हो तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को पकड़ो, वरना फ़हम कुरान से महरूम रहोगे। इसी तरीके से समाज में गाली गलौज का अगर रिवाज है तो गाली गलौज से लोग अल्लाह की नज़र से गिर जाता है और जब अल्लाह की नज़र से गिर जाता है तो फिर उसकी कहीं वक़्त नहीं होती है। इसीलिए बताया क्या जो गाली गलौज से इंसानों को परहेज करना चाहिए। ये तो मुनाफिक का पहचान है, जिसके दिल में सही ईमान होगा उसकी ज़ुबान पर गाली गलौज नहीं होगी। मुनाफिक का पहचान है कि जब झगड़े हुआ तो उस मौके से गाली गलौज करने लगे, इसका मतलब है कि उसके अंदर ईमान सही नहीं है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, हम हमेशा रहने नहीं आए, इस दुनिया से जाना है और जहाँ जाना है वहाँ से लौट के नहीं आना है। क़यामत में अपने किए का अमाल हिसाब किताब देना पड़ेगा। जिक्र वो चीज़ है कि जन्नत में भी थोड़ा सा फिक्र होगा कि काश किस और मैं जिक्र कर लेता तो जो इनाम अल्लाह से मिलना था वो मिल जाता। एक सुभान अल्लाह कहने से ये दुनिया माफिया से बेहतर है। वो जाए समझिए कि जन्नत में उतना बड़ा दरख्त जो 500 साल की मुसाफत का, उसमें घोड़े पर चढ़ के दौड़ेगा फिर भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा।
تو اتنا ثواب جب ایک سبحان اللہ پر ہوگا تو جو غفلت میں اور نہیں یاد کیا اس طرح سے خالی وقت گزر گیا وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں کچھ کر لیا ہوتا، اللہ کو یاد کر لیا ہوتا تو آج میں بہت زیادہ پاتا۔ حالانکہ جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی کام بھی نہیں ہے اور جہاں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو جنت میں اگر کسی چیز کی تشویش انسان کو، مسلمان کو، ایمان والوں کو لائق ہوگا تو ذکر ہی کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو آدمی دنیا میں مشغول ہو کر زیادہ سے زیادہ کما لینا چاہتا ہے وہی وہ مانگتا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو خالی دنیا مانگتا ہے تو میں اس کو اس میں تھوڑا کچھ دے دیتے ہیں، ماں لو فی الآخرۃ من نصیب۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو مجھ سے دنیا میں بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے تو اس کو آخرت میں بھی دیں گے۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سکھا ہے۔ غرض کہ قرآن میں دعا سے شروع ہے اور اللہ کے مخلوقات سے سر سے پناہ پر قرآن ختم ہوتا ہے۔ اور اس بیچ میں آپ دیکھیں گے 100 آیات ہے جس کے اندر تسبیح پڑھنے، ذکر کرنے وہ سیدھے سلسلے میں آیات ہے۔ تو ذکر کرنا یہ بھی قرآن کے ان آیات پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو کلام پاک میں جو کچھ دیا ہے احکام اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی قصے وغیرہ سنائے گئے ہیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے کہ دنیا میں انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور آخرت کی زندگی کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا